وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، ایسا شخص تو بینا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ان ساروں چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ شخص حق کی طرف سے اندھا، حق کے لیے بہرا، حق کے لیے گونگا، اور اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ کیا یہ دونوں لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ نصیحت تو صرف عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں۔ یہ وعدہ الست ہے جس کے بارے میں ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو نکال کر انہیں وہ جسم دیا تھا جو انہیں دنیا میں دیا جانا تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ وہ اللہ کے وعدے کو نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد رکھے ہیں، بندوں کے حق، والدین کے، میاں بیوی کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، مہمانوں کے، عام مسلمانوں کے، وہ ان حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہے، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، لیکن جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کے باوجود بھی اگر یہ پوچھ لیا کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی تھیں، تمہیں ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں،
तुम्हें हर नेमत अता फरमाई थी, इसके बावजूद तुमने ये गुनाह क्यों किया था? तो ऐसा शख्स तो वाकई बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला हमारे हिसाब किताब आसान ले। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह क़यामत वाले दिन अमाल नामा दाएं हाथ में देना और अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब आसान लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए में साया नसीब फरमा, जिस दिन तेरे साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब आसान लेना, हम पर उस पर रहमत कर देना, हम पर उस वक्त हम पर अपनी रहमत से हमें ढक देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत पुल सिरात के वक्त हमारी मदद फरमाना। अल्लाह इन सारे मौकों पे अल्लाह हमें याद रखना। अल्लाह तू खुद कहता है मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह हम तुझे दुनिया में याद करते हैं, तू हमें आखिरत में याद रखना। अल्लाह हम तुझे आसानी में याद करते हैं, तू हमारी मुश्किल में हमें याद रखना। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, हम पे रहम फरमा दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। और वो लोग अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं, और वो लोग अपने रब की रजा तलाश करने के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से छुपाकर और अलानिया खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई के जरिए दूर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आखिरत का अंजाम है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अकल वाले लोगों की सिफात बताई हैं। जरा यहाँ ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सबसे उनकी पहली सिर्फ ये है कि वो अल्लाह के हकूक अदा करते हैं। अल्लाह के हकूक से मराद फराइज, जो अल्लाह की तरफ से हम पर आयद होते हैं, और वो हकूकुल इबाद का भी ध्यान रखते हैं। और ये सारा कुछ किस लिए डरते हैं? आखिरत के हिसाब से डर कर, क़यामत से डर कर। और तीसरी उनकी सिर्फ ये होती है कि वो अल्लाह की रजामंदी के लिए सब्र करते हैं। एक मोमिन की जिंदगी का नुमाया खसूसियत है कि वो तंगी, तुर्शी, आसानी, हर तरह के हालात में सब्र करता है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहता है। और वो लोग नमाज कायम करते हैं, और हमने जो उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। और ये आपको याद रहना चाहिए, इस रिस्क में माल, औलाद, वक्त, सेहत, उम्र, घर, वो तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, वो सब इस रिस्क में शामिल हैं। आम तौर पे लोग रिस्क के मुराद सिर्फ माल ले लेते हैं। माल इस रिस्क का एक छोटा हिस्सा है, और वो जो हमने उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, छुपे और अलानिया तौर पर। और उनकी आखिरी सिर्फ ये है कि बुराई को बुराई से दूर नहीं करते, बल्कि बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। बुराई को बुराई से दूर किया ही नहीं जा सकता। आप मुझे गाली दें, इसके जवाब में मैं आपको गाली दूं, मसला तो खत्म नहीं होगा। आप मुझे जख्म लगा दें, मैं आपको लगा दूं, बताइए मसला खत्म होगा? नहीं। मसला खत्म तब होगा कि मुझे कोई गाली दे और मैं उस पर सब्र कर लूं, और सब्र करके उसे माफ कर दूं, और माफ करने के बाद उसको दुआ दे दूं। दुआ दूंगी तो तब अगले का दिल ठंडा होगा और तब झगड़ा खत्म होगा। गंद पड़ा है, गंद को आप गंद डालने से खत्म नहीं कर सकते। जब तक गंद की सफाई नहीं करेंगे तब तक वो मामला खत्म नहीं होगा। जख्म पर जब तक मरहम नहीं रखा जाएगा वो जख्म मुंदमिल नहीं होगा, वरना एक जख्म दूसरे जख्म को पैदा करता चला जाएगा। तो बुराई से कभी दूर नहीं होती। अगरचे अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि इंसान बुराई का जवाब बुराई से दे सकता है, लेकिन तरगीब किस चीज की दी है कि बुराई को अच्छाई से दूर किया जाए। ये कौन करेगा? जरा सोचें तो सही। आज हमने हजरत यूसुफ का अखलाक पढ़ा, और उसके साथ ही मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल साथ ही दी थी। तो इतने बुलंद अखलाकी मायार का इस्लाम हमसे तकाजा करता है, कौन करेगा ये काम? जरा सोचिए तो सही। जरा मेरे से वादा तो कीजिए। मेरे से क्या आपने वादा करना है? अपने रब से वादा कीजिए। आप रब के हजूर हाजिर हैं,
آپ اپنے رب سے اس وقت باتیں کر رہی ہیں. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو کس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے نبی سے باتیں کریں تو پھر حدیث پڑھ لیا کیجیے. تو اس وقت آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. ذرا بتائیے یہ کام کون کرے گا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی سے نہیں، کس سے دور کرتے ہیں؟ بلائی کے ساتھ. کون کرے گا؟ ہاتھ اونچا کریں، نیتوں کا مطلب پکی کریں، مضبوط کریں اپنے آپ کو. میں کروں گی، نہیں ہوتا اللہ لازمن کروں گی، تیری توفیق کے ساتھ کروں گی. یہ انداز ہونا چاہیے. اللہ کریں گے، ضرور کریں گے. اللہ تیری توفیق کے ساتھ کریں گے، تو ہمیں توفیق عطا فرما. ہم اپنے اندر تیری فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ مدد ہماری تو فرما، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. یہ انداز ہونا چاہیے. اور وہ برائی کو بلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہی آخرت کا انجام ہے. اور وہ انجام کیا ہے؟ جنت ہمیشگی کی. وہ اس میں داخل ہوں گے، اور جو ان کی باپوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے بھی نیک ہوگا. اب یہاں پہ اللہ نے ایک اور خوشخبری سنا دی ان عقل والے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں والدین کو اور اولاد کو، خامن کو اور بیوی کو اور ان کی اولادوں کو اللہ اکٹھا کر دے گا. تینوں کا ذکر آتا ہے. جو کوئی نیک ہوا ان کے باپوں سے، ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے، تو لہذا اولاد اور والدین اکٹھے ہو جائیں گے اور میاں بیوی بھی اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بھی فطرت یہی ہے کہ انسان انہی کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے. تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان سب کو اکٹھا کر دیں گے. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی اولاد کا درجہ زیادہ ہوا، والدین کا درجہ کم ہوا، تو اللہ تعالیٰ اولاد کا والدین کے پاس پھر اولاد کو اکٹھا نہیں کریں گے، بلکہ جس کا درجہ بلند ہوگا اس کے پاس کم درجے والے کے درجے کو زیادہ کر کے اس کا درجہ بھی بڑھا دیں گے. فرض کیا، میں نے آپ کو ابھی بتایا، اولاد کا درجہ اونچا ہے، والدین کا درجہ نیچا ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کے پاس اکٹھا کر دیں گے. کریں گے یہ کہ والدین کا درجہ اونچا کر دیں گے. اسی طرح میاں بیوی میں سے کسی کا درجہ بلند ہے، مثلا جی خاوند کا درجہ بلند ہے، بیوی کا نیچے ہے، یا بیوی کا درجہ بلند ہے اور خاوند کا نیچا ہے، تو اللہ تعالیٰ خاوند کا درجہ بلند کر کے اسے بیوی کے پاس اکٹھا کر دیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بلند درجے والے کا درجہ کم نہیں کریں گے، ہاں کم درجے والے کا درجہ بلند ضرور کر دیں گے. اللہ رحمت تو ضرور کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور فرشتے ان کے اوپر ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ تم پر سلامتی ہو، اس وجہ سے جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا. اب یہ اپنے اولاد، والدین، میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں، فرشتے دروازوں سے داخل ہو رہے ہیں اور انہیں سلامتی کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. یہ خوشخبریاں رب کی طرف سے آ رہی ہیں کہ اب تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اب تم تمام مصیبتوں سے نجات پا چکے ہو. یہ ہمیشگی کی جنت ہے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رضامندی ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار بھی ہوگا. یہ تم پر سلامتی ہے اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا. اور آخرت کا انجام کیسا اچھا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، نہ تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا برا گھر ہے. اللہ تعالی رزق جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر چیز ہے. انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں اس کا مال بھی صرف ہوتا ہے، اس کی جان بھی صرف ہوتی ہے. اس وقت شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا مہینہ کیسے گزرے گا، گزارا کیسے ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ बहुत थोड़े माल में भी बरकत दे देता है और बहुत बड़े ज्यादा माल में भी बेबरकती दे देता है। लिहाजा शैतान के इस धोखे में कभी ना आइए कि अगर अल्लाह के रास्ते में माल दे दिया, अपनी जिस्म लगा दिया, जान लगा दी, माल लगा दी, दुनिया के काम कैसे होंगे। बात है जब आप अल्लाह के रास्ते में चल रहे होते हैं, अल्लाह आपके कामों की जिम्मेदारी खुद उठा देता है, अल्लाह आपके काम सारे आसान कर देता है। और वो लोग जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर इसके रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। कह दीजिए अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है गुमराह करता है और अपनी तरफ उसे हदायत देता है जो कि अल्लाह की तरफ रजू करता है। काफिर हमेशा से ये मुतालबे करते रहे कि आपके ऊपर एक बहुत सा खजाना नाजिल कर दिया जाए, एक फरिश्ता उतार दिया जाए, लेकिन इस तरह के मौजज़ों को देखने के बाद भी हर कोई शख्स ईमान नहीं लाते, हर कोई शख्स ईमान नहीं लाता, बल्कि कुफार पहले से ज्यादा गुमराह हो जाते हैं। जैसा कि आपने कौम समूद की ऊँटनी के बारे में देखा, क्या वो लोग इस मौजज़े को देखने के बाद ईमान ले आए थे? कतअन नहीं। अल्लाह जिसको चाहता है मौजज़े के बाद भी गुमराह कर देता है और हदायत उसे ही मिलती है जो अल्लाह की तरफ रजू करता है। तो हदायत लेने का एक ही तरीका है, नेकियों में आगे बढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को नेकियों में आगे बढ़ते जाइए। जब आप नेकियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह की तरफ से हदायत के रास्ते आसान होते चले जाते हैं। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद के साथ मुतमईन होते हैं, सुन लो, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये आयत इस बारे में वाज़ेह है कि पीस ऑफ माइंड, इत्मीनान कल्ब सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। बहुत ज्यादा मालो दौलत जैसे करून के पास था, या बहुत बड़ी बादशाही जैसे फिरौन के पास थी, या बैनुल अक़वामी शोहरत, किसी भी तरीके से इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं होता। अगर यकीन ना हो तो ऐसे लोगों से पूछ कर देख लें जिनको अपने मालो दौलत की मिकदार का अंदाजा भी नहीं, लेकिन हालत ये होती है कि रात को नींद के लिए तरसते हैं, मुखलिस साथियों के लिए तरसते हैं, उनको कोई मुखलिस साथी नहीं मिलता, सेहत उनका साथ नहीं देती और वो मालो जर के डेरों के बावजूद बेचैन अंगारों पर लौट रहे होते हैं। अल्लाह ताला का जिक्र कैसे करना चाहिए? अल्लाह ताला का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका कुरान मजीद है। बाकी अगर आप चाहें तो अल्लाह ताला को उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काम करते सफर करते हर वक्त अल्लाह को याद कीजिए। कोई लफ्ज जो आपकी जबान पे चढ़ा हुआ है उस लफ्ज को दोहराते रहिए, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या कोई और कलेमात जो आपको पसंद हैं, दरूद पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और अपनी जबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखिए। अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। कुछ लोगों ने जिक्र के गैर मसनून तरीके ईजाद कर रखे हैं, जैसे कि हर दफा अल्लाह का नाम लेते हुए वो दिल पर ज़रब लगाते हैं, या टोलियों की शक्ल में नारे मारते हैं, या शेख का तसव्वुर करके जिक्र करते हैं। ये सब तरीके फायदे की बजाय नुकसानदेह हैं। अल्लाह ताला ऐसे शिरक और बिदअतों से हमें बचाकर खालिस किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए खुशहाली है, उनके लिए खुशखबरी है और अच्छा ठिकाना है। हमने इसी तरह पहली उम्मतों में भी जो आपसे कबल गुजर गई, हमने नबी भेजे थे ताकि जैसा कि हमने तुझे इस उम्मत में भेजा है, इससे कबल भी कई उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उनके ऊपर वो चीज पढ़ के सुनाएं जो हमने आपकी तरफ वही की है। और वो रहमान का इनकार करते हैं। कह दीजिए वो मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रहमान भी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इस लफ्ज से कुफार को खास चिढ़ थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया। कह दीजिए वो मेरा रब है,
उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। और अगर कुरान ऐसा होता कि जिसके साथ पहाड़ चलाए जाते या उसके साथ जमीन कता कर दी जाती या उसके जरिए मुर्दे बातें करते तो तब भी ये लोग ईमान ना लाते। कुफार ने आपसे निशानी तलब की कि मक्का के इर्द गिर्द के पहाड़ खिसका कर मक्का खुला कर दिया जाए, जमीन से चश्मे निकल आए ताकि पानी की किल्लत खत्म हो जाए, हमारे बाप दादा को कब्रों से निकाल कर जिंदा कर दिया जाए ताकि हम उनसे आखिरत की तस्दीक कर सकें। लेकिन ये सारा कुछ भी अल्लाह कर देते तब भी ये लोग ईमान ना लाते। हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि अगर हम इनके सामने मुर्दे खड़े कर दें, इनसे आसमान से फरिश्ते उतर आए, ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह के लिए ये सारा कुछ, सारे मामले अल्लाह के लिए हैं। क्या अहले ईमान मायूस नहीं हुए कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम लोगों को हिदायत दे देता और काफरों को उनकी करतूतों की वजह से मुसीबत पहुंचती ही रहेगी, या तो उनके घर के करीब अजाब आता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादों से खिलाफ नहीं करता। और आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया डील दे दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। तो कैसा था मेरा अज़ाब? क्या वो शख्स जो हर नफ्स की कमाई पर नजर रखता है इनको छोड़ देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शख्स के अमाल को देख रहे हैं, इसीलिए ही अल्लाह ताला ने कयामत का दिन रखा है। क्या वो जात जो हर नफ्स की कमाई पर नजर रखता है जबकि उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक बना रखे हैं? कह दीजिए इन शरीकों के जरा नाम तो लो। क्या तुम अल्लाह को खबर देते हो जो वो नहीं जानता जमीन में, या यूं ही तुम जाहिर बात कह देते हो? अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने जो मेरे शरीक बना रखे हैं जरा इन शरीकों के नाम तो लो, मुझे बताओ तो सही मेरे शरीक कौन से हैं। हालांकि मैंने तो अपना कोई शरीक नहीं बताया। ये बिल्कुल मुझे वैसी ही बात लग रही है जैसे हम बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे। एक शख्स मलिका के पास आता है और उसे आकर कहता है कि मलिका आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि मुझे मेरे सामने जरा मेरे शरीकों के नाम तो लो, जिनको मैंने तो शरीक नहीं बनाया, तुमने उन्हें मेरा शरीक बना दिया है। हालांकि मैं जमीन और आसमान की हर शय को जानता हूँ। तो क्या तुम एक झूठी बात कह देते हो? बल्कि काफिरों के लिए उनकी चालें खुशनुमा बना दी गईं और वो सीधे रास्ते से रोक दिए गए। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त होता है और उन्हें अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में भी उनकी जिंदगी बेचैनी की जिंदगी गुजरती है, उन्हें दिल का इत्मीनान नहीं होता। दुनिया की मुश्किलात उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के रह जाती हैं और आखिरत में दोज़ख का अजाब उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता। उस जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकीन से वादा किया गया है, उसके नीचे से नहरें बहती हैं, उसके फल और उसके साए दायमी हैं। ये उन लोगों का अंजाम है जो अल्लाह से डरते रहे, और काफिरों का अंजाम तो आग ही है। और वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो उससे खुश होते हैं जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है, और गिरोहों में से बाज ऐसे हैं जो कि उसका इनकार कर देते हैं। कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करूं। मैं अल्लाह ही की तरफ दावत देता हूं और मेरा उसी की तरफ ठिकाना है। और इसी तरह हमने कुरान को अरबी जुबान में हुक्म बनाकर नाजिल किया। और अगर आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, हालांकि आपके पास इल्म आ चुका, आपको अल्लाह के मुकाबले में कोई हमायती भी आपका ना होगा और आप अल्लाह को आपके अजाब से भी कोई ना बचाएगा। नबी भी अल्लाह ताला के तब तक महबूब होते हैं जब तक कि वो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, और अगर अल्लाह ना करे, और ऐसा आमतौर पे नहीं होता, लेकिन मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने बताया कि अगर नबी भी अल्लाह के नाफरमान हो जाएं और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करने लग पड़े तो फिर उन्हें अल्लाह के अजाब से और अल्लाह के गजब से कोई शख्स बचा नहीं सकता। और हमने आपसे कबल बहुत से रसूल भेजे थे और हमने उनकी बीवियां भी बनाई थी और औलाद भी बनाई थी। किसी रसूल के लिए ये लायक
किसी रसूल में ये ताकत नहीं कि वो निशानी ले आए। हाँ, अल्लाह के हुक्म के साथ। अंबिया इंसान होते हैं, वो नूर और बशर नहीं होते, वो किसी की औलाद होते हैं और उनकी बीवियां भी होती हैं, वो खाना भी खाते हैं, उनके साथ सारी इंसानी जरूरियात भी लगी होती हैं, उनकी औलादें भी होती हैं। और रसूलों को ये इख्तियार नहीं होता कि वो मौजज़ा अपनी मर्जी और अपनी ताकत से ले आए। ये इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं। अल्लाह जब चाहे मौजज़ा उतार दे और जब अल्लाह ना चाहे तो मौजज़ा ना उतारे। अल्लाह जब चाहे अजाब दे दे और जब अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। ये सारे इख्तियारात अंबिया के नहीं हैं, बल्कि ये इख्तियारात अल्लाह ने अपने पास ही रखे हैं। और किसी रसूल में ये ताकत नहीं थी कि वो मौजज़ा लाता। हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म होता तो फिर हर दौर के लिए अल्लाह ताला ने एक किताब रखी है। अल्लाह ताला मिटा देता है जो चाहता है और बाकी रखता है, और अल्लाह के पास असल किताब है। और अगर हम तुझे दिखा दें बस वो चीजें बस वो अजाब जिसका हमने उनसे वादा किया है, या ए नबी हम आपको फौत कर लें, तो आपके जिम्मे तो पैगाम पहुंचा देना है और हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। जिस अजाब का इन कुफार से वादा किया गया है वो अगर हम चाहें तो आपकी जिंदगी में ही हम इन पे नाजिल कर दें और कुछ आपकी वफात के बाद नाजिल कर दें। नबी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। हिसाब लेने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने पास रखी है। क्या ये कुफार नहीं देखते कि हम जमीन को इसकी तमाम अफराद से कम करते हुए, घटाते हुए चले आ रहे हैं? कुफार ये नहीं देखते कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है और कुफर के लिए जमीन तंग होती चली जा रही है, और अल्लाह ताला ही फैसला करता है। अल्लाह के फैसले पर कोई नजर सानी करने वाला नहीं है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और उन लोगों ने जब पहले भी चालें चली तो अल्लाह के लिए सारी चालें हैं। वो जानता है हर मुतनफिस क्या कर रहा है, और अनकरीब काफिर जान लेंगे कि आखिरत का अंजाम किसके लिए है। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कह दीजिए अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान काफी है, और वो शख्स भी गवाही देने के लिए काफी है जिसके पास किताब का इल्म मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह इब्राहिम शुरू कर रहे हैं। अलिफ लाम रा। किताब उन्ज़िला इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये किताब हमने आपके पास इसलिए नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल के ले आए अपने रब के हुक्म के साथ। जबरदस्त और तारीफ किए गए आका के रास्ते की तरफ। अल्लाह वो जात है जिसके लिए जो जमीन में है और जो आसमान में है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से तबाही है। वो लोग जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर लिया। काफिर कौन होता है? जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर ले। उसका मरकज़ो महवर, उसका टारगेट ऑफ लाइफ दुनिया होती है, जबकि मोमिन का टारगेट ऑफ लाइफ आखिरत होती है, रब की रजा होती है। ये एक मोमिन और काफिर का बड़ा सीधा सा आपस में मुकाबला है। वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद कर लेते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें टेढ़ तलाश करते हैं, ऐसे लोग वाज़े गुमराही में हैं। और हमने किसी भी रसूल को जब भी भेजा उसकी कौम की जबान में भेजा ताकि वो उनके ऊपर खोल खोल कर बात को वाज़े कर दे। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत दे देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है, और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। तबलीग की हुज्जत पूरी करने के लिए नबी इस कौम का फर्द होता है, उन्हीं की जबान में बात करता है ताकि इस वजह से कोई ना समझने का मसला पैदा ना हो। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ नबी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो पैगाम इलाही को खोल खोल कर बयान कर दे। और हमने हजरत मूसा को भेजा अपनी आयात के साथ कि तू अपनी कौम बनी इसराइल को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल के लाओ और उन्हें अल्लाह ताला के अय्याम की खबर दे दो। अय्याम से मुराद यहाँ पर
वो दिन हैं जिनमें जो कि तारीख के खास खास दिन हैं, यादगार दिन, जिन दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आए थे या कोई अल्लाह ताला की खास नेमतें हुई थी। आम तौर पर अय्याम से मुराद अल्लाह ताला की अजाब और इबरत के दिन हैं, और उन्हें अल्लाह ताला के दिनों से इबरत दिलाइए। बेशक इस बात में निशानियां हैं हर सबर करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। सबर और शुक्र एक मुसलमान की जिंदगी के की बुनियादी सिफात हैं। एक मुसलमान लाजमन सब्बार भी होता है और शकूर भी होता है। सब्बार मुबालगे का सीगा है और शकूर भी, शाकिर की बजाय शकूर भी मुबालगे का सीगा है। ये दोनों एक मुसलमान की बुनियादी सिफात है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें बुरा अजाब देते थे, तुम्हारी बेटों को ज़िबा कर देते थे, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और इन दोनों अजाबों में तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब तेरे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर तुम कुफर करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अभी आपने पढ़ा कि एक मुसलमान की जिंदगी में सबर और शुक्र उसकी बुनियादी सिफात होती हैं। और अल्लाह ताला ने यह भी ऐलान कर दिया कि जब कोई शुक्र करता है तो मैं उसको ज्यादा देता हूँ। जितनी अगर आपको कोई नेमत ज्यादा चाहिए, अल्लाह का उतना ज्यादा और शुक्र कीजिए। और अगर इंसान नाशुक्री की करता है तो अल्लाह ताला दी हुई नेमत भी छीन लेते हैं, और ये तो दुनिया में सजा मिलती है, और आखिरत की सजा ये होती है कि उसके लिए अजाब भी होता है। और औरतों के, खास औरतों के हवाले से, औरतों को अल्लाह के नबी ने जब मेराज में औरतों को देखा और दोज़ख में ज्यादा देखा, और वजह ये बताई कि तुम खामदों की नाशुक्री करती हो। तो ये नाशुक्री जो है ये इंसान को दोज़ख में ले जाने वाला अमल है। एक मोमिन की बुनियादी सिफ्त है शुक्रगुजारी और सबर और शुक्र। एक और बात भी, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। तो जिस इंसान का शुक्रिया अदा करना भी लाजिम है उस इंसान का भी शुक्रिया अदा कीजिए। ये भी अल्लाह ने ही हमें आदाब सिखाए हैं और अल्लाह के नबी ने हमें ये आदाब सिखाए हैं। और तेरे रब ने ऐलान कर दिया अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। और मूसा ने कहा अगर तुम कुफर करो तुम भी और जो तुम जमीन में हैं तमाम के तमाम, तो अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफ के लायक है। अल्लाह को तुम्हारी नाशुक्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे पास लोगों की खबरें नहीं आई जो तुमसे कबल थे, कौम नूह की, कौम आद की, कौम समूद की, और वो लोग जो उनके बाद थे उनको अल्लाह ही जानता है। उनके पास उनके रसूल बाज़ निशानियां लेकर आए थे तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों में दे दिए, गैज़ो गज़ब की वजह से अपनी उंगलियां काटी और उस हदायत पर ईमान न लाए और कहने लगे हम उस चीज के साथ जो तुम देकर भेजे गए हो कुफर करते हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके बारे में हम सख्त शक में मुब्तला हैं। उनके रसूल कहने लगे क्या तुम्हें अल्लाह की जात के बारे में शक है जो जमीन और आसमान का खालिक है? वो तुम्हें इसलिए अपनी तरफ बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ताला जो हमें हदायत की दावत देते हैं इसलिए दावत नहीं देते कि अल्लाह ताला की कोई जरूरत हमसे अटकी हुई है। अल्लाह ताला की बादशाही, वो अपने अंदर बादशाह है, वो अपने अंदर जमीन आसमान का मालिक है। उसकी इबादत करने के लिए करोड़ों अरबों की तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं, और जहाँ तक माल का ताल्लुक है अल्लाह ताला खुद हर एक को अता फरमाता है। अल्लाह हमें इसलिए दावत देता है क्योंकि हम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमें गुमराही में पड़ता हुआ नहीं देख सकता अपनी उस मोहब्बत की वजह से, वरना अल्लाह की कोई जरूरत हमसे नहीं अटकी हुई। वो तुम्हें इसलिए दावत देता है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ कर दे और एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हें ढील देता है।
وہ لوگ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں اس چیز سے روک دو جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، تو اچھا ایک واضح نشانی لے کر آؤ۔ ان کے رسول کہنے لگے ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اب ان کے اس اعتراض کا جواب کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، انبیاء نے یہ دیا ہم بالکل 100% تمہارے جیسے انسان ہیں، اور نبی انسان ہی ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب فرما لیتے ہیں، اسے برگزیدہ کر دیتے ہیں، اس کے پاس اپنی ہدایت بیچتے ہیں اور اس کی یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تم اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اس اپنے بندوں میں سے، اور جہاں تک تمہارا معجزہ مانگنے کا تعلق ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، ہاں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو انبیاء کے اختیارات ہمیں یہ نظر آتے ہیں، انبیاء معجزہ نہیں لا سکتے چاہیں بھی تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے اوپر کفار کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے تو ان کے لیے زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان سے ایک سیڑھی لگا لو اور ان کے لیے خود معجزہ لو۔ تو انبیاء نہ تو معجزہ لانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں، نہ زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، اور نہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہیں۔ اور یہ الفاظ ہم کئی دفعہ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی زبان سے کہلوائے ہیں، اس کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے۔ وہ نبیوں کو تو عالم الغیب چھوڑ کے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیر فقیر بیچارے عالم الغیب ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے عقیدے ایجاد کر لیے۔ قرآن تو ان کی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تک یہی عقائد شرک کے دروازے ہیں، انہی کے ساتھ ان شیطان اپنی وہ اصلی دشمنی جو اس کو بنی نوع انسان سے ہے، جو اس کو آدم اور آدم کی اولاد سے ہے، وہ پوری کرتا ہے، اور ہم انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے ان غلط عقائد کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج صرف ایک ہے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، قرآن کے ساتھ آپ کو صحیح عقیدے کا پتہ لگے گا۔ اور ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے، ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے دکھا دیے ہیں، اور ہم اس چیز پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیت دو گے۔ ہر نبی کو اس کی قوم نے اذیت دی، ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا، مذاق کیا، جسمانی تکالیف، سب کچھ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا، اور اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی سچے ایمان کی توفیق دے، صحیح عقائد کی توفیق دے، ان راستوں کی توفیق عطا فرما جو راستے تیری جنت کو جاتے ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں ان غلط عقائد سے اور ان غلط سوچوں سے بچا لے جو سوچیں شرک اور بدعت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان